हेलो स्टूडेंट्स, आज ही डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स। हाउ डू एरर्स प्रोपिगेट इन द रिजल्ट। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਰਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਵਿਚ ਦੈਟ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਫਾਈਂਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਗਿਵਨ ਸਿਲੰਡਰ। ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਯੂ and our aim is to find density of that cylinder. So question, how do we find density? So what is density here? It is mass upon volume. It means we have to measure the mass of the cylinder. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ mass measure ਕਰਾਂਗੇ cylinder ਦਾ। What would happen? It may contain some error. So ਕੁਝ error ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ mass measure ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ enter ਕਰ ਗਈ ਇਸ density ਦੇ ਵਿੱਚ। Similarly, when we find volume, what is volume cylinder? Pi r square h. H is height of cylinder and r is the radius of the cylinder. And then just an example. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। So when we calculate the volume, we have to calculate radius of the cylinder and height of the cylinder. ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ measure ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ measure ਕਰਾਂਗੇ errors would enter here. ਇੱਥੇ h 'ਚ ਵੀ error ਆ ਗਈ, r 'ਚ ਵੀ error ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਰਰ ਇਨ ਦਿਸ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਸਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਐਰਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਏ ਗਿਵਨ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਈਏ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਰਰਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਵੀ ਟੇਕ ਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗਸ। ਸਪੋਜ਼ ਲੈਂਥ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ। ਯੂ ਟੇਕ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੀਡਿੰਗਸ A2 A3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਸੇ AN। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਦਾ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ. So we have to take mean value of all these readings. So what is mean value? A bar, A1, A2 and so on AN divided by N, or we wrote it like this summation form. I1 to N, 1 upon N here and AI. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈਆਂ ਸਭ ਦਾ ਸਮ ਕਰੋ, ਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਦੈਟ ਨੰਬਰ, ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ। ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਦੈਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰਸ। ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਇਜ਼ ਐਰਰ ਇਨ ਈਚ ਰੀਡਿੰਗ। ਹਰੇਕ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਐਰਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਪੋਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਇਨ A1 ਅਸੀਂ ਕਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ A ਬਾਰ ਮਾਈਨਸ A1 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਫॉर ਐਨੀ ਜਨਰਲ ਰੀਡਿੰਗ AI A ਬਾਰ ਮਾਈਨਸ AI। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। some will be positive, some will be negative. Next step ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? we find mean absolute error. mean absolute error ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ A ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਡੈਲਟਾ A ਬਾਰ। again it is mean of all the errors but by taking mod of these, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। So delta A1, delta A2 and so on up to ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ delta AN ਐਡ ਕਰੋ divide by N। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ which is taken as true value, absolute error in each reading ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ। then mean absolute error, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ mean absolute error ਆ ਗਈ then we can represent the given result like this। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਦਾ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਫ A bar is the value found,
there are chances that value may be taken this value above or lesser than this, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ like this delta a bar or a bar minus delta a bar ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ a ਬਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਕੀ ਸੀ? ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ divided by this mean value, that is relative error. If we represent it in terms of percentage, it become percentage error. कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ परसेंटेज एरर आ गई है। तो ਅਸੀਂ को ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਤੇ ਇੱਕ परसेंटेज ਐਰਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ जो तुम एडिशन करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं एंड सो ऑन, उदों किहड़ी एरर्स प्रोपेगेट करदियां ने ते कितनी वैल्यू उस एरर्स की हो सकती है। सो लेट अस ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन। Suppose we want to measure a certain quantity, it is A. Another quantity is there B। दो साढ़े को lengths ने, दो temperature ने, दो mass ने सानू given है, असी measure कीते तो what would happen? There would be some error, delta A bar here, delta B bar here। what would happen here? इन्हों क्या कह सकते हैं? प्लस माइनस उन्हें पर डिस्कस किया सी। So this is error in measurement of A quantity, this is in B। ਹੁਣ ਸਾਡਾ aim ਕੀ ਹੈ? to find summation of these, दोनों ਦਾ sum करना, say the number is x। so what would happen? अगर हम ऐड करांगे, साਡਾ नॉर्मली करिए ऐड किंदा A given है, B given x की है, A plus B, इन्ना साਡਾ आंसर आना सी। but because A and B both contain error, there would certainly be error in x। तो x ਵਿੱਚ भी error आ जाएगी, कितनी का आएगी? तो मान लिया ਆਪਾਂ कितनी आ रही साडा x plus minus delta x आएगा, it is this A plus minus delta A, B plus minus delta B। सो इस तरह ਦਾ अगर आ जाए, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ रिजल्ट बड़ा सौखा। अगर इस तरह साढ़े को आ जाता तो आप की लिखना? एक तो एक्स फाइंड करना, एक्स को इस तरह फाइंड कर लो, ए प्लस बी, ए अलग तो फाइंड कर लो। तो कह रहे डेल्टा एक्स कितना आ रहा है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मीनिंग की है? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर in A plus maximum absolute error in B। सो मेन साढ़े गल ये आ चुकी है, असी बार नहीं लिखते पे, इस बार बच्चा कन्फ्यूज हो रहे हैं ना। तो डेल्टा A प्लस डेल्टा B एरर्स जड़ियाँ ने ऐड अप हो जाती, कि ऐड हो रही ने? एब्सोल्यूट एरर्स, दे गैट एडड अप ड्यूरिंग एडिशन ऑफ टू थिंग्स। दो आप क्वांटिटी ऐड करते पे हैं तो उन्होंने की होएगा? एब्सोल्यूट एरर्स जड़ियाँ ऐड हो जाएगियाँ। सिमिलरली इन सबट्रैक्शन, अगर ये सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होएगा? एज केस से इट इज़ ए माइनस कर दिया जगह पे, कुछ भी नहीं चेंज आना, असी करना सी ए माइनस बी, ए माइनस बी तो इस तरह आना, एक्स आ जाएगा ए माइनस बी। बट एरर जड़ियाँ अगेन हम ध्यान रखना इस जगह पे, एरर्स वुड बी एडिड अप अगेन हेयर, एरर्स ने ऐड ही होना। सो माइनस नहीं करना, आप बच्चे भुलेखा खा जाते थे, इतने प्लस ही आना। सो एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन ए
प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन बी। आ थोड़ा जिहा हुण तुहाडे मन च कन्फ्यूजन आएगी। आप एक एग्जाम्पल लैके फिर नैक्सट चलते हैं। बड़ी आसान एग्जाम्पल आप डिस्कस कर लगे हैं भी क्यों असी इस तरह लिख रहे हैं भी एरर्स जिहड़ियां ने दे गैट एडड अप बोथ इन एडिशन एंड इन सबट्रैक्शन। सपोज कर साढ़े को दो नंबर ने, से इट इज़ 20, another one is say 10. It has error of say plus minus 3, it has error of plus minus say 2. ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ a ਦੀ? a can take two values. At the maximum level it can take 20 plus 3 23. अगर माइनस लवांगे it would be 17. इधर b बारे देखिए असी अगेन इट कैन डू, अगर प्लस लईए तो 12 माइनस लईए तो 8। ਇਹਦਾ मीनिंग ਇਹ नहीं भी दो ही वैल्यू हैं, ਇਹਦਾ मीनिंग ये है the range of values of a is in between 17 and 23। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 23 ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 17, ਇੰਨੀ ਕਿ ਐਰਰ 'ਚ ਹੈ ਮਾਰਜਨ। सिमिलरली हेयर बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 12, मिनिमम कितनी हो सकती है 8। हुण असीं इहनूं ऐड करके देखना। साडा पहला प्रोसैस की सी ए प्लस बी, असीं ऐड कर लगे हाँ। हुण देयर कैन बी 4 कॉम्बीनेशंस। अगर आए ना करेगा ऐड कितना आ जाएगा देखो प्लीज़ 23, एक केस साडे को आ गया 23 प्लस 12, एक बच्चा इस तरह ऐड करता पाया, ये कह रहा नहीं मैं 23 प्लस 8 करना, ओके। Another one says that मैं 17 plus 12 करना, another says 17 plus 8। सानू नहीं पता कितने एडिशन हो रही है, आप चारे केस देख लेने है। आ मैक्सिमम वैल्यू ऐड की कितना आ रहा साढ़े कोल, इट कम्स आउट टू बी 35, 3 and 5। इधर कितना आ जाएगा 31, 29, ये कितना आ गया साढ़ा 25। देखें आप सारे 35, 31, 29, 25। हुण अगर a प्लस b ऐड किया हुंदा सी वैसे 20 ते b नूं ऐड किया हुंदा ते कितना आना सी, इट वुड बी 30। हुण आ वैल्यू कितनी आ रही है 30 प्लस 5, ये कितना आ रहा मिनिमम वैल्यू 30 -5। की देखा आप वाट काइंड ऑफ रिजल्ट है दिस, असी की देख रहे हैं फिर रिजल्ट से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 30 प्लस 5 एंड मिनिमम कितनी हो सकती 30 -5। सो यू कैन से दैट द वैल्यू 30 प्लस -5। वी लाइक दिस असी इस तरह इनू खोल के देख लिया भी दीस आर द वेरियस केसेस। दोबारा देख लो, ए दी वैल्यू 20 प्लस -3 है, बी दी है 10 प्लस -2, आ प्लस -3 एरर है इन मेजरमेंट ऑफ ए, प्लस -2 इज़ एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। तो बाद तो बाद ए दी वैल्यू कितनी हो सकती है 23, मिनिमम कितनी हो सकती है 17। सिमिलर बी दी 12 मैक्सिमम, मिनिमम 8। सो वेरियस कंबीनेशंस ट्राई करिए। बाद तो बाद सम कितना आ सकता है इन्हां दा अगर मैक्सिमम वैल्यू ऐड हो जाए, घट तो कितना आएगा जो मिनिमम वैल्यू ऐड हो रही। तो की देखिया आप कितना का मार्जन आ रहा, अगर 20 तो 10 ऐड करिए तो प्लस माइनस साढ़े को 5 आ रहा। अगर सौखे तरीके लिखना है मैं सारे रिजल्ट नूं मैं की लिखांगा, सपोज दिस एक्स इज सानू टास्क मिला ऐड ए प्लस बी। तो की देखिया व्हाट इज डेल्टा एक्स, मैक्सिमम एरर इन ए, मैक्सिमम एरर इन बी। ये कितनी आ रही है 3, ये कितनी आ रही है 2, इट कम्स आउट ऑफ बी 5। रिजल्ट की लिखना सी दोनों ऐड करिए। सो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस 10 30 प्लस माइनस 5। ये साडा सम साडे को आ रहा। क्योंकि देखिया सारे कंबीनेशन ट्राई करने की कोई लोड़ नहीं।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 + 5 ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ 30 - 5। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੈਟ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰਸ ਗੈਟ ਐਡਡ ਅਪ, ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਸਰ A - B ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਸਨ A ਦੀਆਂ ਦੋ, 23, ਮਿਨੀਮਮ 17, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 12, 8। हम माइनस करके देखिए, अगर 23 - 12 करिए, फिर 23 - 8 करिए, 17 - 12 करिए एंड 17 - 8 करिए, तो देखो कितना आ रहा है इस केस कम्स आउट टू बी 1 1 11। इधर कितना आ जाएगा 15 + 8 है ना 23। इधर कितना आ रहा है साढ़े कोल 5। इस केस कितना साढ़े को आ रहा है देखो 17 - 8 9। सो मैक्सिमम कितने रिजल्ट आ रहा है, मैक्सिमम रिजल्ट इज हेयर। मिनिमम कितने आ रहे हैं इस जगह पे। ऑल अदर वैल्यूज आर इन बिटवीन 5 and 15। तो की आप देख रहे हैं ऐसे किस, अगर सीधा ऐड करिए 20 - 10 करिए, 20 - 10 कम्स आउट टू बी 10। तो रिजल्ट देखो, वी कैन राइट दिस 15 की लिख सकते हैं 10 + 5। मिनिमम की लिख सकते हैं 10 - 5। सो कोई देखा आप रिजल्ट ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 + 5 आ सकता, मिनिमम 10 - 5 आ सकता। सो की देखा अगेन एब्सोल्यूट एरर्स आर एडड अप। तो रिजल्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ A - B ਕਰਨਾ। ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ A - B 20 - 10 ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ, प्लस माइनस की करना एरर्स इन A ਤੇ B दोनों ऐड कर दिए कि साढ़े को आ रहा 10 + - 5। सो आ एग्जाम्पल आप देखी है, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰਸ ਆ ਦੇ ਗੈਟ ਐਡਡ ਅਪ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ। ਨਾਓ ਥਰਡ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਆਫ again A is a quantity with error delta A. Here B is another quantity, error delta B. When it is said to us multiply these two values, दोनों multiply इसी करना है, तो की आप देखेंगे error in the result एस केस एब्सोल्यूट एरर्स नहीं ऐड होंगी, एस केस क्या नहीं एरर्स होंगे ने ऐड रिलेटिव एरर्स। देख ली पहले रिलेटिव एरर की सी, सो इस रिलेटिव एरर कितनी आ रही है, सपोज भी नोट बाय डेल्टा ए, रिलेटिव एरर ए कितनी आई सी डेल्टा ए अपॉन ए, रिलेटिव एरर बी डेल्टा बी अपॉन बी। तो रिजल्ट वुड बी लाइक दिस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी। सो की देखिया सी रिलेटिव एरर इन एक्स इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। सो द रिलेटिव एरर्स ने दे गेट एडेड अप इन मल्टीप्लिकेशन। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट अबाउट परसेंटेज एरर, तो कुछ भी नहीं, दोनों तरफ अगर 100 ना मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा रिजल्ट साडा डेल्टा एक्स 100 डेल्टा ए इंटू 100 सॉरी
प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की हो जाएगा जिथे रिलेटिव एरर लिखा थे असी लिख सकते हैं परसेंटेज एरर सो वी कैन राइट लाइक दिस परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट in x is percentage error in a percentage error in b so relative errors and percentage errors they get added up in multiplication now in division जिस तरह का कन्फ्यूजन बच्चों को आंदा सबट्रैक्शन च उस तरह का ही डिवीजन में सोच लेंगे ने और अपने माइंड 'च रखना अगेन प्रूफ इज़ नॉट हेयर प्रूफ नहीं हैगा बट रिजल्ट क्लीयर है अगर यदि बजाय सूँ गिवन होंदा डिवीजन ऑफ ए एंड बी तो रिजल्ट जी एरर आ वो कोई चेंज नहीं आना सी देयर वुड बी नो चेंज इन द रूल फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन सो की मीनिंग कहता भी रिलेटिव एरर्स they get added up in division also चाहे मल्टीप्लिकेशन होए चाहे डिवीजन होए रिलेटिव एरर्स जड़ियाँ ने दे एड अप परसेंट एरर्स जी परसेंटेज एरर्स ने दे गेट एडड अप चाहे परसेंटेज एरर कह लो चाहे रिलेटिव एरर्स कह लो ये एड अप हो जांदियां ने सो परसेंटेज एरर्स जड़ियाँ ने वो ऐड होंदियां ने तो सिंपल रूल की बन के साढ़े को एडिशन ते सबट्रैक्शन दे विच एब्सोल्यूट एरर्स जड़ियाँ ने दे गेट एडड अप while in case of division and multiplication relative errors are added up. Let us discuss another case. Suppose we have a relation like this and the relation is given x is equal to a raised to power n. कोई रिजल्ट ऐसा वा जिहदे पावर आ रही है किसी क्वांटिटी की से अगर मैं कहना वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब लेंथ का क्यूब है ना सो लेंथ इंटू लेंथ इस तरह आंदा रिजल्ट इफ यू फाइंड वैल्यू ऑफ द लेंथ अगर मैं कहा फाइंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब तुसीं की करोगे यू विल फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब एस क्यूब की साइड फाइंड की सी इट इज एल उस एल च कुछ एरर आ गई वो एरर लैके तुसीं कैलकुलेट किया वॉल्यूम दैट वॉल्यूम आल्सो कंटेन्स एरर वो एरर कितनी आई वॉल्यूम दैट इज हेयर सो एक्स इज एन जनरल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस लाइक दिस ए रेज़्ड टू पावर एन उन कह रहे हैं व्हाट वुड बी एरर इन एक्स सो इन दिस केस अगेन वी विल टॉक अबाउट रिलेटिव एरर सो रिलेटिव एरर इन एक्स एंड टाइम्स relative error in A. You can like this relative error in X and times जिन्नी भी पावर होए relative error in A. एग्जाम्पल अपन वॉल्यूम की देख रहे थे मान लो सपोज देखिए असी वॉल्यूम की एक्सप्रैस किया है वी एल क्यूब तो अगर इन्होंने मल्टीप्लिकेशन शो करके देख लिए इट बिकम्स एल इंटू एल जैसे की पढ़ा से डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन एल डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा एल अपॉन एल कितनी बारी आ गया 1 2 3 क्या डेल्टा एल अपॉन एल एक किसी पावर सो मीनिंग पावर का मीनिंग क्या है दिस ए इज मल्टीप्लाइड विद ए एन टाइम्स ए ओनी बारी एरर ऐड हो रही है तो एन टाइम दिस एरर इज एडेड अप सो वी राइट इन शॉर्ट लाइक दिस एरर्स के लिए ने रिलेटिव एरर्स आर कैलकुलेट लाइक दिस इन केस ऑफ पावर सिमिलरली परसेंटेज एरर बिल्कुल सेम
इतने रिलेटिव एरर आ गई, उत्थे परसेंटेज एरर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने च। सो वी कैन से परसेंटेज, मैं ऐसा लिख सकता, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए। सो आ रिजल्ट भी आप माइंड च रखना है भी जो साढ़े को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है या पावर है, तो वी यूज रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। लेट अस ट्राई जनरल फार्मूला भी साढ़े को इस तरह का आ जाए। एक्स इज इक्वल टू ए एल बी एम सी एन, अगर इस तरह का आ जाए तो व्हाट वुड बी एरर इन डेल्टा एक्स? सो वी विल कैलकुलेट रिलेटिव एरर एल टाइम्स relative error in A plus कितनी पावर B दी m टाइम्स relative error in B। हुण डिवीजन ते मल्टीप्लिकेशन कोई फर्क नहीं वाइल कैलकुलेटिंग relative errors। सो सेम तो माइनस नहीं आना, प्लस ही आना, प्लस n टाइम्स relative error in C। सो जिन्नियां भी टर्म्स गिवन होन मल्टीप्लाई होंदियां डिवाइड होंदियां सब दी रिलेटिव एरर ऐड होनी है, जिन्नी उन्होंने पावर वो अगे आ जाती है। एंड सेम रिजल्ट वुड बी वैलिड फॉर परसेंटेज एरर। सो नैक्सट स्टैप जब लिखता वहाँ इस जगह तो फिर राइट लाइक दिस, 100 इतने क्या आ जाएगा n टाइम्स परसेंटेज एरर इन A, B and C। So percentage and relative errors are added up in case of division, multiplications and powers। देख लिया पास आपने। Let us try some examples। Says that two pipes of length 10 plus 5 plus minus 0.2 centimeter and 5.2 plus minus 0.1 centimeter are joined together। Find total length with error limits। Find total length with the error limits। So what is given here? Say it is L1 5.2 plus minus 0.1. This is the absolute error in L1. L2 10.5 plus minus 0.2. So if L is L1 plus L2, so what would be delta L? ਅਸੀਂ पढ़े डेल्टा L कितना आएगा? मैक्सिमम एरर इन L1 L2 कितना रह सका थे 0.1 0.2 व्हाट वुड बी वैल्यूज 0.3 इस जगह पे आ गया ना जी। सिंपली नहीं करिए 5.2 10 plus 5 15.7। So answer would be L। मैं मेंशन करदा जानबूझ के थे डेल्टा L कंप्लीट लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं इज इक्वल टू
15.7 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ब्रैकेट डाल के सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो की देखिया असी वही फार्मूला एडिशन के दौरान आ दोनों ऐड करतियाँ 15.7 and these absolute errors are added up here. Similarly, अगर मैं कहा इन्नी लेंथ गिवन है तो उस इन्नी पाइप कट दो, तुम माइनस करोगे पर जी एरर आ दैट वुड बी एडेड अप, उन्हें ऐड ही होना। तो नैक्सट एग्जाम्पल ट्राई करिए आप एक नोट कर लो प्लीज़। The initial and final temperatures of body are the initial and final temperatures of a body are 40.6 plus minus 2 degree centigrade and 78.3 plus minus 0.3 degree Celsius. Calculate the rise in temperature. इस केस की है इनिशियल टैंपरेचर गिवन है, बॉडी ने हीट अप किया, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਕੇ 78 ਪੁਆਇੰਟ this much ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਆ, what is rise in temperature, how can we find rise, subtract this value from this value। so ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ θ1 is say temperature is 40.6 plus minus degree Celsius, θ2 78.3 plus minus 0.3 degree Celsius। our is to find rise in temperature। ऐस किसकी करांगे, एक ब्रैकेट से ये लिख लिए 78.3 माइनस 40.6 प्लस माइनस एरर के केस ही करना, एरर्स ने ऐड ही होना, चाहे एडिशन होए चाहे सबट्रैक्शन होए। तो 0.2 प्लस 0.3 तो कितना देखो आ रहा है इस केस degree Celsius, right। so this is how I found that चाहे एडिशन होए चाहे सबट्रैक्शन होए एब्सोल्यूट एरर्स जिहड़ियां they get added up। नेक्स्ट ट्राई करिए कुछ मल्टीप्लिकेशन बारे, कुछ पावर्स बारे। थर्ड, परसेंटेज एरर in the measurement of length and breadth of a rectangle is errors are 2% and 3% respectively। find percentage error in measurement of area of rectangle। सपोज एरिया रैक्टेंगल सानू गिवन है,
ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਥ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, ਦਿਸ ਮਚ 2% ਲੈਂਥ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਈ ਐਰਰ, 3% ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਐਰਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ you can say that here percentage error in this, what is the area of rectangle is length into breadth। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਗੈਟ ਐਡਡ ਅਪ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ in A is equal to percentage error in L plus percentage error in B। बड़ा आसान, 2 + 3 is equal to 5%। कितना सिंपल आंसर। जो मल्टीप्लाई करना उदो परसेंटेज एरर्स जड़ियाँ ने ऐड अप हो जानियां ने। नैक्सट देखिए क्वेश्चन, परसेंटेज एरर इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए क्यूब। अगर आ जाए is percentage error in the measurement of length of a cube is say 2%। find the percentage error in the measurement of volume। कोई क्यूब गिवन है, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਐਰਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ 2%। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ what would be error in that volume। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸ ਕੇਸ, we say that volume of cube ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ side cube, side into side into side। so percentage error in V की रिलेशन जा सानू अगर पावर आ जाए, पावर अगे आ जाए 3 into percentage error in L। so percentage error in L कितनी है 2%। so answer would be 6%। तो एस केस की देखिया 6% साडा एरर आ रही है इन द वॉल्यूम ऑफ दिस, इन फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। अगेन आप देख लिए परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ। हुण देखो ध्यान ना, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ mass and length of a cube are कितनी errors ने, say it is 2% and 3%। find percentage error in the measurement of ਡੈਂਸਿਟੀ। ਇਹ ਐਰਰ 2% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, 3% ਆ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਆ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਐਰਰ ਇਨ ਦਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲੀਅਮ। ਸੋ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, परसेंटेज error in density is equal to percentage error in mass plus percentage error in volume। But in this case we are given with length, volume नहीं given है, सानू की given है length। So we can write this formula in terms of length। चाहे इस तरह कर ली, चाहे दो स्टेप्स करने पैने सानू। की देखा फिर असी percentage error in density is, ये देखा percentage error in M, because M has only one power है नहीं साढ़े को, power of L is 3, so 3 times percentage error in L।
फिल करिए असी 2% कादी आ रही है मास च 3% इधर आ रही है तो 2 + 9 11%. So such questions are there. कोई क्या से mass and velocity which a linear errors given है find error in the kinetic energy. Same अगर आइंदा इसका percentage error in the measurement of mass and velocity. इस तरह के कॉमन क्वेश्चन आने ऑफ ए बॉडी are 2% 3% find percent error in the measurement of kinetic energy. क्वेश्चन ने असी उसका फार्मूला देखा की है देखोगे एस के एच की है फार्मूला याद है E = ½ mv². सेम साढ़े को आ रहा उस केस की सी डिवाइड हो रहा इस केस की हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा बट साडा एम की आ जो परसेंटेज फाइनल करनी आप एरर इट विल बी एडिड अप इन्हें ऐड ही होना. सो मैं कह सकता परसेंटेज एरर इन E = ½ की तो कोई ना नहीं परसेंटेज एरर इन M प्लस कितनी पावर b दी 2 टाइम्स percentage error in v. Find the velocity. as किस कितना आ रहा 2 + 2 × 3 2 + 6 = 8% is the answer. इस तरह की प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ फार्मूले गिवन हो सकते हैं वो वैल्यू फिल कर देनी तुसी. अनदर आप डिस्कस करके देखिए एक कॉमन पावर वाला करके देख लेने. Suppose x is a quantity such that a⁻², b⁻³, c⁻, say 4, d square root. Find percentage error in x if percentage errors in A, B, C and D are say 1%, 2%, 3% and 4% respectively. कुछ भी वैल्यू गिवन हो सकती सानू कोई डर की जरूरत नहीं हैगी कि सानू फार्मूला याद है सोल्यूशन की हो सकता है इस चीज़ वी नो दैट इन सच सिचुएशन परसेंटेज एरर इन x = पावर ऑफ a 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस पावर ऑफ b 3 परसेंटेज एरर इन b प्लस 4 टाइम्स परसेंटेज एरर इन C स्क्वायर रूट कितनी पावर आ गई हाफ टाइम्स परसेंटेज एरर इन D. चाहे मल्टीप्लाई हो रहा चाहे डिवाइड हो रहा पावर्स ने ऐड ही होना. ये देखिया 2 परसेंटेज एरर कितनी आ रही साढ़े को H 1%. 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन B 2%. पावर 4 परसेंटेज एरर इन C 3%. परसेंटेज एरर इन D 4. और कटिंग करके कितना आ रहा 2. ये देखिया 2 + 6 + 12 + 2 8 to 10 nearly 22% error would be there. ये देखिया असी अज के लैक्चर एडिशन सबट्रैक्शन जी एब्सोल्यूट एरर्स आ एड अप होंदियां ने जो कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या पावर के रिलेशन रिलेटिव एरर्स तो परसेंटेज एरर्स एड अप होंदियां ने. इन द नैक्सट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द significant figures. Thank you class.